السلام علیکم. پروگرام ٹی ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شبانہ منیا، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی سریلی گیسٹ. لیکن ان کا تعارف کروانے سے پہلے بہت اہم ہے کہ میں ان کے والد کا ذکر کروں، جو پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھا. بہت ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ اس جہائے فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ان کا کام، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی محنت ضرور ڈسکس ہونی چاہیے. اور آج کا یہ پروگرام میں انہیں ٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی. میں بات کر رہی ہوں مرحوم احمد عرفان صاحب کا. احمد عرفان صاحب پاکستان کے مشہور مایہ ناز پروڈیوسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی پشتو فلم کے ڈسٹریبیوٹر بھی احمد عرفان صاحب ہیں. بہت محنت کی، اصول پسند تھے، نو کمپرومائز کا بورڈ لگا ہوا تھا ان کے ارد گرد، جو ان کے حلقہ احباب آتے تھے اور بہت کچھ کروانا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے جو پاکستان فلم انڈسٹری کو جو دے کر گئے ہیں، وہ آئی تھنک آنے والے دنوں میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ایک رہنمائی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری طرح سے تربیت گاہ یا درس گاہ کے طور پر آپ کو کام آئے گی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج احمد عرفان صاحب کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی ذات میں پوری ایک انجمن ہے. اور انجمن کیوں نہ ہو جب احمد عرفان صاحب کا سایہ اور ان کا ہاتھ ان کے سر پر تھا اور ان کی تربیت تھی. آر جے ہیں، وی جے ہیں، ایکٹنگ بھی کرتی ہیں، وائس اوور آرٹسٹ، بہت مشکل کام ہے. اس میں انہوں نے ٹرکش پلیز کے جتنے بھی سپر ہٹ پلیز اس وقت پاکستان میں آن ایئر ہیں، ان کے لیڈ کیریکٹر کی وہ وائس اوور کر رہی ہیں، کر چکی ہیں. اور میوزک ان کا پیشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جس تیزی سے ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اچھی بات ہے، اور لگتا ہے کہ وہ صرف کام کر رہی ہیں. اور آج تھوڑا سا وقت انہوں نے ہمارے لیے نکالا. ہماری خوش نصیبی انجمن عرفان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں شبانہ؟ میں ٹھیک ہوں، کافی عرصے بعد میں دیکھ رہی ہوں تو میں. ہاں بالکل، بس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ملاقاتیں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنا لمبا انٹروڈکشن آپ نے میرا دیا، اور بہت شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کی، اپنے پیرنٹس کی، جن کی دعاؤں سے آج میں مصروف ہوں، کام کر رہی ہوں، اور آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم احمد عرفان صاحب کو، ان کی خدمات کو لوگوں کو بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ کس طرح ایک شخصیت نے جو ایک پوری ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، اور کس طرح انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ کنٹریبیوشن کر گئے جو ہسٹری میں لکھی جا رہی ہے. بالکل. ابو کی جو جرنی رہی شبانہ، وہ تو ایسی ہے کہ میں شاید یہ ہمارا جو ڈیوریشن ہے وہ کم پڑ جائے گا اس پہ اگر ہم ڈسکشن کرنے پہ آئیں. بہت اصول پسند تھے ابو، کم گو، اور چاہتے تھے کہ ان کے سبجیکٹ پہ بات کی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اور جب ہم بیٹھ کے بات کرتے تھے تو ابو کی ہر بات جہاں سے شروع ہوتی تھی، اینڈ یہ ہوتا تھا کہ کیا سیکھا، اس بات سے کیا سیکھا، کیا مطلب اگر میری جگہ پر آپ ہوتی تو کیا کرتی. اب وہ ایسا جواب ہوتا کہ جو سمجھ میں نہیں آتا کہ جواب دیا کیسے جائے اس سوال کا، کہ آبویسلی کیونکہ جو بھی جواب دیا جاتا تھا اس میں کریکشن ہوتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ ابو کے الفاظ ہوتے تھے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے. اور شبانہ مطلب ابو کی جو جرنی رہی ہے، مطلب بلیو کریں آپ کہ مطلب فرسٹ ٹائم جب یہ بات ابو نے شیئر کی، امی سے پتہ چلا گھر میں کہ ابو نے بچپن کیسا گزارا. تو ابو نے بچپن میں سارے وہ کام کیے کہ جو شاید ہماری آج کی جنریشن وہ کبھی نہ کرے. مطلب آئی مین کہ آرام طلبی، کہ مطلب انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے گیجٹس پاس ہے، کچھ بھی ایک بٹن کے اوپر کافی سست ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا ہوتی ہے، پوری دنیا ہوتی ہے. لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ میں ابو نے نیوز پیپر بھی سیل کیے ہیں، اور ابو نیوز پیپر دے، اور کیا صبح ارلی مارننگ، مطلب ابو بتاتے کہ اندھیرے میں
اٹھ کے اور ابو اخبار جو تھے وہ بیچا کرتے تھے اس کی اور اس کے ساتھ میں، اور شوق کیا تھا کہ وہی فلم کی طرف آنا ہے. اور اس میں اچھا وہ شوق ان میں ڈیولپ کہاں سے ہوا؟ مطلب ان کے دادا، ان کے والد کیا فلم انڈسٹری میں تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی تو یہ تو نہیں بڑا تھا. مشکل ہوگا ان کا انٹر ہونا اس جگہ انڈسٹری میں. اس کا یوں سمجھ لیں کہ ابو پشاور میں پلے بڑے، پشاور میں خاصا ٹائم ابو نے گزارا، بچپن پورا پشاور میں گزرا. کہ ابو کے جو پڑوسی تھے نیبر وہ دلیپ کمار صاحب تھے، کہ جو 2 گھر چھوڑ کے رہتے تھے ان کے ساتھ کھیل کود کے ساتھ ہوتے ہوتے بڑے ہوئے. ٹاکنگ اباؤٹ جب انڈو پاک تھا 47 سے پہلے کہ نا، ان کا بچپن تو تبھی وہ. ہاں بالکل بالکل. تو اب آپ سوچیں کہ جب ایسے بچپن گزرا ہوگا تو اس وقت نہ انہوں نے سوچا ہوگا نہ انہوں نے. اچھا دلیپ صاحب کی کچھ میموریز ریکال کرتے تھے بچپن میں؟ یہ لوگ ملتے تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح کے تھے، ان کا ایک انداز ہوتا تھا بولنے کا؟ وہ ابو آپ یہ دیکھیں شبانہ کہ جب دلیپ صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو ابو بہت روئے تھے. مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی مطلب ہمارے گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. مطلب ہم سب بہت روئے تھے کیونکہ ابو کی اتنی انوالومنٹ تھی ان کے ساتھ میں. اور رہی بات کہ جو کھیل کود کی آپ نے بات کی، بالکل بچپن ساتھ گزرا، کھیل کود ساری، اور وہیں سے یہ چیز ان کے اندر بڑھتی گئی، ڈیولپ ہوتی گئی کہ صبح اخبار فروشی وہ کرتے، فروخت کرتے، اور اس کے بعد پھر کیا کہ شام میں وہ جو پیسے آتے اس سے ٹکٹ لے کے فلم دیکھنے جاتے. اتنا شوق تھا ان کو. صحیح. اور کھانے پینے کا بھی شوق کہ وہ چمچے میں چٹنی ٹماٹر کی بھون کے کہ نہیں کھانا بھی اچھا ہے، پہننا بھی اچھا ہے، شوق بھی رکھنے. اور پڑھائی جو تھی وہ پول کے نیچے بیٹھ کے کرتے تھے. مطلب کیونکہ ابو اور فلم انڈسٹری میں کیسے انٹر ہوئے؟ مطلب کیا ہوا، کس طرح گئے؟ اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے. نہیں بالکل بھی آسان نہیں. جو اخبار پہلے سیل کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک فیکٹری کے مالک بن گئے، پھر ابو اپنا اخبار نکالتے تھے. تو بس یہ ساری محنت جو میں نے کہی کہ ہمارے یہاں کی جنریشن یہ کبھی بھی نہ کرے، نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کل تو ہمیں ڈگری ملتی ہے اور ہمیں ایگزیکٹو پوسٹ پہ جانا ہوتا ہے. وہ جو ایک آپ کو جو ایک سیڑھی، ایک دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، وہ ہم اوپر تک نہیں جانے نہیں جا سکتے. اچھا پھر ان کا شمار ہوتا ہے جو بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ پشتو فلم کے پہلے ڈسٹریبیوٹر تھے. یہ اعزاز بھی اپنی جگہ بہت بڑی بات. وہ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، پاکستان کا اعزاز ہے. اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب پشاور میں رہنے کی وجہ سے obviously وہ پشتو ہی فلم، اگر کراچی میں رہ رہے ہوتے obviously پھر اردو فلمز کی بات ہوتی. پشاور میں رہائش تھی تو پشتو فلمز اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، اور یوں اعزاز وہ ابو کے حصے میں آیا. اور وہ مطلب انہوں نے جیسے پیار کا موسم ہے، بلیک میل ہے، اور بھی بہت ساری فلمز ہیں جو ان کے کریڈٹ میں ہے. تو اس وقت کتنا آسان تھا کوالٹی دینا. اور جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شروع میں تم نے کہا کہ جب آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی تھی پر ان دا اینڈ آپ کو بٹھا کے ڈسکس کیا جاتا تھا، تو کیا وہ کانٹینٹ اتنا لٹریٹ ہوتا تھا، بڑا مطلب اس میں خیال رکھا جاتا تھا؟ ایسا ہی ہے کہ آپ نے کیا سیکھا دیکھنے والوں کو، مطلب اس سے لیسن ملے؟ بالکل ایسا ہی. وہ کانٹینٹ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جس میں کوئی لیسن ہو. مجھے یاد ہے شبانہ کہ جب اگر ہم 90s میں چلے جائیں تو اس وقت وی سی آر اس کا بڑا ایک بوم ہوتا تھا، وی سی آر کا، اور پھر ویڈیو کیسٹس اور جو مووی ریلیز ہوتی تھی تو محلے میں سب کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم وہاں سے دیکھیں. بالکل بالکل. تو اب جب وی سی آر گھر میں آیا تھا تو اس دن بڑا خوش تھے ہم لوگ کہ بھائی وی سی آر آیا ہے. اور ابو کو کیونکہ obviously شوق بہت تھا، تو ابو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اکیلے بیٹھ کے فلم دیکھیں. ابو چاہتے تھے سب بچے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، امی بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھے، ساتھ میں انجوائے کرتے تھے سب کے ساتھ بیٹھ کے. اور فلم کے اینڈ ہونے کے اوپر بھی پوچھتے تھے کیا سیکھا اس میں. تو obviously وہ جو فلم ہمیں دکھا رہے ہوتے تھے وہ ہوتی ہی ایسی تھی جس میں کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے ملے. لائک فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہے ساتھ، اور اسٹرگلنگ ٹائم بچوں کا کہ انہیں کیسے محنت کرنی چاہیے. ہم مطلب بہت سی فلم اس طرح کے کیریکٹرز ہوتے ہیں. ایک اچھے
कैरेक्टर्स होते थे, बुरे कैरेक्टर्स होते थे, नेगेटिव विलन टाइप, और एंड द एंड दिखाया जाता था कि विलन ने तो मरना ही है या उसका एंड ऑन और हीरो ने जीतना है। अच्छा अभी एनजी, मेरे लिए अंजुमन इरफान हमेशा से एनजी रही है। एनजी अभी तूने बात की वीसीआर की। अच्छा जब वीसीआर आया ना तो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के आने से। अच्छा उस वक्त जो प्रोड्यूसर्स थे ना वो काफी परेशान भी हो गए थे और काफी उनका नुकसान भी हो रहा था। तो वो पीरियड आपने अपने वालिद साहब का किस तरह देखा? क्या वो डिसहार्ट हुए थे, क्या वो डिप्रेशन में गए थे, मतलब क्या? नहीं ऐसा था, बिल्कुल था। और वो डिस्कशन करते थे कि बिजनेस से बहुत फर्क पड़ा है। गो के घर में भी हम लोग भी देख रहे होते थे तो यही होता था कि देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं इसी तरह से सब देखते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर उसका एक मतलब एक वर्स्ट टाइम था। सिनेमास टूट गए थे, टूटना शुरू हो गए थे, लोग नहीं जा रहे थे उस वक्त तक। फिर भी शबाना ऐसा था कि बिजनेस थोड़ा सा लो हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये सोशल मीडिया आगे बढ़ता गया तो बिल्कुल अब सूरत हाल ऐसी है कि अब सिनेमास जो है मतलब समझ मैं ही कहूंगी 70% टूट चुके हैं, लेकिन अब दोबारा रिवाइव हुआ। अच्छा एक और बात पश्तो फिल्म्स को लेकर, अभी तुमने बात की कि अहमद इरफान साहब बहुत मतलब डीपली इस बात का ख्याल रखते थे कि मूवी पूरी फैमिली देखे, लेकिन अगर मैं पश्तो फिल्म का जिक्र करूं तो लेटर ऑन ऐसी पश्तो फिल्म्स आने लगी जो सॉरी टू से वल्गैरिटी से भरी हुई होती थी। तो क्या उस वक्त उन्हें तकलीफ होती थी? उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम उनके जो उस वक्त के जो उनके जो दोस्त अहबाब थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो क्या कर रहे थे, और उसके बाद जो एक ग्रुप आया उसने क्या दिखाना शुरू कर दिया? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक टाइम था कि अब्बू ने बहुत ज्यादा पश्तो फिल्म्स को बहुत ज्यादा इनकरेज किया था, आगे लेके चल रहे थे, लेकिन फिर अब्बू ने पश्तो फिल्म से साइड लाइन हो गए थे। अब्बू ने उस पे काम जो था वो स्टॉप कर दिया था ड्यू टू वल्गैरिटी जो अभी आपने बात की। उसके बाद फिर उर्दू फिल्म्स इनको ज्यादा फोकस किया और फिर अब्बू ने अपनी फिल्म प्यार का मौसम वो रिलीज की। उस फिल्म पर हम जरूर बात करेंगे और उसके बाद हम एनजी की अपनी जर्नी पर आएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अहमद इरफान साहब को हम रिकॉल कर रहे थे, उनकी साहबजादी, उनकी बेटी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुरीली, बहुत ही स्वीट अंजुमन इरफान हमारे साथ मौजूद है। हम उनकी उर्दू फिल्म्स की बात कर रहे थे जिसमें प्यार का मौसम और देन ब्लैकमेल, और वो भी आई थिंक ब्लैकमेल के बारे में भी तुमने बड़ी एक मतलब वो भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, ब्लैकमेल का ये है कि वो पाकिस्तान की वो वाहिद एक्शन फिल्म थी, पहली एक्शन फिल्म जिसमें अब्बू हमारे यहाँ के जो एक्शन हीरोज हैं उनको एक साथ लेकर आए थे, जिसमें एक बड़ा नाम सुल्तान रही साहब और गुलाम मुहिउद्दीन साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। ये वो तीन नाम हैं जो एक्शन फिल्म के किंग्स कहे जाते हैं उस दौर के। तो वो एक साथ आए थे। तो वो फिल्म ऐसी थी कि जब वो रिलीज हुई थी तो आप ये समझे कि रोड ब्लॉक हो गए थे। वो इतनी, क्योंकि एक साथ तीनों का आना फिल्म के अंदर, तो वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है उस टाइम के लिए। सही। और एक कोई मूवी थी जो तुमने मुझे बताया था 5 साल तक रिकॉर्ड है उस मूवी को, वो 5 साल तक सिनेमा में जी हाँ, वो फिल्म अब्बू ने रिलीज की थी, छोटी बेगम। नाज सिनेमा पे वो रिलीज हुई थी और वो प्योर घरेलू फिल्म है। और उस फिल्म की जो मेजॉरिटी थी वो खवातीन थी, जो मैंने सुना और जो एक रियलिटी है कि आजकल अगर हम देखें तो फैमिलीज घरों में इतना टाइम होता नहीं है किसी के पास कि जाएं सिनेमाज में देखें, एक ने दूसरे को बताया फिर जाके देख रहे हैं, अब वो टाइम ही नहीं है। लेकिन वो टाइम बहुत खूबसूरत था शबाना, लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं, बुकिंग हो रही है कि फिर उसके बाद टिकट्स ब्लैक में सेल हो रहे हैं और उसमें फिर हाउसफुल का बोर्ड
लग जाना जी हाउसफुल है, तो ये मैं समझती हूँ बड़ी खूबसूरत यादें हैं कि जो हम याद करते हैं तो बड़ा मिस करते हैं। और छोटी बेगम ने वो रिकॉर्ड दिया था कि कंटिन्यूसली इतनी ईयर्स तक वो फिल्म सिनेमा पे लगी रही और उसमें कसीर तादाद खवातीन की थी। अच्छा ये बताओ कि इरफान साहब की इतनी छोटी सी जो गुड़िया थी, इसने खुद से बाबा से कहा था कि मैंने शोबिज में जाना है, या उन्होंने तुम्हारे अंदर ढूंढ लिए थे जम्स के इसने कुछ करना है? शबाना, इतना सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ दिया। इसकी अगर मैं सच्चाई पे जाऊं तो वो ये है कि बिल्कुल भी नहीं, अब्बू हरगिज नहीं चाहते थे कि मैं शोबिज में आऊं। अच्छा। और मैं हादसाती तौर पर मैं शोबिज में आई हूँ। इतना अरसा अब्बू को देखती रही, काम हो रहा है, आर्टिस्ट आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ये सोचा ही नहीं कि मैं करूंगी काम। इवन बहुत से आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि करना चाहिए, मुझे ऑफर्स भी किए, लेकिन अलाउ नहीं था। मेरे घर का बड़ा प्योर टिपिकल घरेलू माहौल है और उसके साथ साथ पख्तूनों वाला माहौल तो नहीं था? नो वो वाला माहौल नहीं है, लिबरल थोड़ा सा, मतलब फीमेल्स के लिए नहीं समझा जाता था वो वाला माहौल। तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं, हालांकि बैठ के मूवीज भी देख रहे हैं, जा भी रहे हैं, शूट पे भी जा रहे हैं, इवन रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं अब्बू की, उस पे भी जा रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो हमने भी कभी उसको ओन करना या किया जा सकता है। तो बस हादसाती तौर पर आई, खामोशी से आई, और जब काम कर लिया, खामोशी मतलब सीक्रेट था पूरा? एग्जैक्टली, बहुत सीक्रेट अच्छा। रखा था। करने के बाद मुझे ये पता था कि जो मैं काम कर रही हूँ उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। लेकिन डर नहीं लगा कि जब ये काम सामने आएगा और मेरे अब्बा को पता चलेगा तो ऐसा ना हो कि मुझ पे बैन लगा दिया था। मैं कितने साल तक मैंने काम नहीं किया था और मैंने पीटीवी की ईद प्ले किया था, मैंने फर्स्ट वो किया था और बहुत अच्छा था। प्ले का नाम क्या था? सलमा को मिल गया बलमा। अच्छा, ज़ेबा शनाज की बहू बनी थी मैं। और उसके बाद जब वो एयर हुआ है तो मेरी जो क्लास हुई है और यार क्या बताऊं, लेकिन शायद कि हर चीज का एक टाइम होता है सही, और अगर मना किया था कुछ सोच के मना किया होगा। और उसके बाद फिर एक टाइम आया कि जो बैन लगा था और मुझे म्यूजिक लेकिन अलाउ कर दिया था कि म्यूजिक करना, और फिर वही जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, फिर जब मैं काम कर रही होती फिर मुझे दुआएं भी मिल रही होती थी कि अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने शबाना अपनी फैमिली वैल्यूज को तुम्हारा एक्टिंग से हुआ। हाँ, मतलब आपने अच्छा ये अच्छी बात है कि जरूरी नहीं कि आपको काम के पीछे जाना है तो आप हर चीज, क्या कहते हैं, हर चीज से आप आजाद हो जाते हैं। अगर आप अपने वैल्यूज के अंदर रहते हुए करें तो बहुत अच्छा काम कभी कोई काम बुरा नहीं होता। हाँ। आप अपनी जगह खुद बनाते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज का ख्याल रखें, और आप ये ना भूलें कि हम बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, हम एक मुसलमान है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या अपने हमारा क्या कल्चर है, जो हमें कल्चर है ऑब्वियसली, तो उसमें रहते हुए काम करेंगे, कभी कोई काम गलत नहीं हो सकता। तो स्टार्ट तुम्हारा एक्टिंग से हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि एक बैन लगा आपको, कुछ अरसे आप गायब ही हो गई सलमा के उस प्ले के पास से, स्क्रीन से आउट हो गई, लेकिन फिर दोबारा से म्यूजिक को लेकर फिर सामने आई। उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो अख्तर अल्लाह दत्ता साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने उनसे मैंने सीखना, मतलब म्यूजिक अलाउ किया था। फिर ये हुआ कि ठीक है, अब मैं वही सारे गामा, वो भी पीटीवी के म्यूजिक प्रोड्यूसर के बहुत बड़ा नाम अख्तर अल्लाह दत्ता, तो उनसे मैंने स्टार्ट लिया, लेकिन म्यूजिक मेरा चल ही रहा था। आई मीन कि मैं उस वक्त मैंने कदम रखा था, तो उसके साथ साथ मुझे वॉइस ओवर की फिर ऑफर हुई थी, तो यूं फिर मेरा वॉइस ओवर का सिलसिला जो था वो पहले स्टार्ट हो गया। अच्छा, वॉइस ओवर की ऑफर किस तरह हुई थी कि इससे पहले तुम वॉइस ओवर जिंगल्स को लेकर या कमर्शियल्स को लेकर? मैं कुछ भी नहीं कर रही थी उस वक्त। तो ऑडिशन दिया था जब टर्किश प्लेस का एक बूम आया? ऐसा हुआ था कि म्यूजिक क्योंकि मेरा पैशन है, तो म्यूजिक के सिलसिले में ही मेरी इम्मू जो फ्यूजन है, इमरान, एग्जैक्टली, तो इम्मू भाई से मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो वहीं पे प्रोजेक्ट हो रहा था, डबिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, उसके ऑडिशंस और सारी एक गहमा गहमी थी स्टूडियो में उनके 146 में, तो मेरा वहां जाना हुआ। अब जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो फिर उन्होंने मुझे फौरन कहा अंजुमन ऑडिशन देना, तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? कहा आप देना।
तो जब मेरा वॉइस ओवर में ऑडिशन लिया गया, वो ऑडिशन मैंने Play पास कौन सा कर था? लिया, इजाबेल मेरी आखिरी मोहब्बत। ओह तो ग्रेट। वो मैंने पास कर लिया। अब तो भाई मेरे तो कदम नहीं जम रहे कि भाई मुझे तो अच्छा, मुझे यहाँ पर अपने व्यूअर्स को भी मैं चाहूंगी कि तुम हमें बताओ कि एक होता है कि तुम्हें एक रोल ऑफर हुआ, हाँ। तुमने खुद वो एक्ट किया, तुमने खुद परफॉर्म किया। अच्छा, वॉइस ओवर और खासकर टर्किश प्लेज या किसी भी डबिंग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक तो लिप्स, लैंग्वेज, Exactly. ड्यूरेशन, टाइम, एक्सप्रेशन, हाँ। क्योंकि वो अगर स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहा है तो आप अपने, जैसे रेडियो में पहले प्लेज होते थे तो आप अपनी आवाज से वो एक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो ये हाँ। ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं ये समझती हूँ क्योंकि एक्टिंग का भी मुझे पता है कि एक जो सेट ड्रामा आर्टिस्ट होता है उसके लिए एक्टिंग करने के लिए बहुत मार्जिन होता है। हाँ। मतलब वो खड़े होके एक्टिंग कर सकता तुम है, खुद ही परफॉर्म कर रही हो, वॉक कर तुम्हारे सकता पास है, एक- 2 कदम लिए, हाँ। बैठ गया, पॉज ले लिए, आईज से एक्टिंग की, अपनी आई कांटेक्ट रहा, उसका जेस्चर्स लिए, हाथों से की पूरी बॉडी लैंग्वेज हो रही होती है। लेकिन डबिंग के अंदर हमारे पास एक बड़ा लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, जो टाइम हाँ, हमारा, duration, ठीक है, जो हाँ, ड्यूरेशन है हाँ। हमारा, हमने ये देखना है कि मैंने ये देखना है कि मेरे सामने जिस वक्त कैरेक्टर है इसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसको मैंने सुना। अब उसके मुझे अपने वॉइस में वो सारे एक्सप्रेशंस देने हाँ, मैं हैं, यही कहना चाह ठीक रही है। हूँ, अब वो सही। लो एंड पे कहाँ आई है, वो हाई नोट पे कहाँ गई है, वो चीखी है तो उसमें ब्लास्ट भी नहीं होना चाहिए और आपके एक्सप्रेशंस में वो सब कुछ हो। क्योंकि आप ये देखें शबाना कि हॉलीवुड देखें, पाकिस्तान में मैं समझती हूँ शायद बहुत कम ऐसा हो, अब फिर भी होने लगा है, पहले नहीं होता था। बात कर रही हूँ मैं डबिंग की, कि अगर हम हॉलीवुड की बात करें, हम बॉलीवुड वो की एक बात अलग करें, पार्ट है, ट्रेनिंग तो है, उनकी बहुत की सारी- मूवीज जो होती हैं वो डिपेंड करती है डबिंग के ऊपर, सही। ठीक है। वो कभी आपके बूम माइक के ऊपर, कॉलर माइक के ऊपर वो नहीं जाते, सही। वो उस पे काम नहीं करते, वो डबिंग करते सही। हैं। तो ऑब्वियसली उनका एक स्टैंडर्ड, उनकी क्वालिटी अलग होती है। हमारे यहाँ के लोग नाचना थे कुछ अरसे पहले तक इस चीज से कि अपने कंटेंट को वाया डबिंग जो है वो प्रोड्यूस करना फॉर चाहिए। एग्जाम्पल तुम माइक के सामने खड़ी हो और ज्यादातर टर्किश प्लेयर्स वॉरियर्स और उस पर ही बेस करते हैं। अब वो Exactly. भाग रहे हैं, वो थक रहे हैं, वो रो रहे हैं, अब आपने खड़े हो गए, आपने इस तरह से आवाज निकालनी जैसे आप हाँप रहे हो, कांप रहे हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल क्योंकि काम है। तो इसलिए ये ज्यादा मुश्किल है उस एक्टिंग के तो साथ में। तुम्हें लगता है कि इसका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान में है? क्योंकि प्लेस तो आ रहे हैं, हाँ। और आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ कर देते हैं या आप कर करके सीख जाते हैं, इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ होना चाहिए हमारी स्पेशली डबिंग के लिए। लेकिन ये है कि जब क्योंकि मैं डबिंग डायरेक्टर भी रही हूँ, जब मैं इश्क़ ममनू में कर रही थी उसको मैंने हेड किया था, उसके बाद और डिफरेंट ड्रामा से इंतकाम आया, अरे उम्मीद वाह, आया, इतनी छोटी सी जो है बड़े बड़े काम करने शुरू हो गई। तो उसमें जो मेरे सामने आर्टिस्ट आते थे, हाँ। तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे शबाना, हाँ, तो सही। वो नहीं कर सके। अब मुझे उनको ये बताना, ब्रीफ करना कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था। एनीवे करना था, तो उसमें हमारे कुछ न्यू कमर्स भी हैं जो करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही इस वक्त कहना अच्छा, चाहूंगी। कभी ऐसा हुआ कि तुम सीनियर्स को बताने, उनका काम है, वो सीनियर होता है, और हाँ। तुमने बताया हो कि सर या मैडम इसको यूं नहीं यूं करना है, तो उन्होंने बुरा मान बिल्कुल, दिया बिल्कुल, हो, देखिए, या तुम अब हमें 11 सिखाओगी, साल का तुम अरसा मुझे गुजर गया ना, सिखाओगी। मुझे वॉइस ओवर डबिंग करते हाँ, करते 11 साल गुजर हाँ। गए। लेकिन वो जो मेरा पहला साल था उस पे मैं इस हेड कंडीशन में आ गई थी, उस सिचुएशन में थी कि मैं प्रोजेक्ट हेड कर रही हूँ, मेरे सामने सीनियर्स भी आ रहे हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स भी आए जिनका मुझे ऑडिशन लेना है। तो जब मैं कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या सवाल करूँ। तो मैं डिस्कस करती, जाके बात करती कि मुझे क्या कहना चाहिए। मेरी जॉब थी, मुझे काम करना था, और मैंने कभी अपने किसी काम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। अब जब ऑडिशंस का मैंने- मतलब ही ये है कि आपने वही लेकिन शबाना, जब हमारे सामने सीनियर्स होते हैं, हमारे बहुत सी चीज़ें, इस वक्त हमारे सामने ब्रेक आ गई है। हाँ, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। अंजुमन इरफान हमारे साथ मौजूद है और हम डिस्कस कर रहे थे कि अंजुमन के सामने जब बहुत बड़े बड़े नाम हो, सीनियर्स हों, और उनको आप बता रही हैं कि सर या मैडम यूँ नहीं, हमें ये चाहिए, इस तरह चाहिए, तो उनका रिएक्शन ये था कि अच्छा ठीक है, बता, हमें गाइड कर रही है, अच्छी बात है, या फिर आपको सुना दी, खड़ी खड़ी सुनाती कि तुम हमें सिखाओगी? नहीं शबाना, खैर मेरी एसोसिएशन सबके साथ बहुत अच्छी रही है, और फिर वो एक मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी, तो वो चीज़ कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, जो मेरे कलीग्स थे उनके साथ में ज़रूर ऐसा हुआ था, क्योंकि सीनियर की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है ना। अच्छा एनजी, ये बताओगे जैसे म्यूजिक में अख्तर साहब का तुमने नाम लिया, तो ज़ाहिर है इसमें भी इमू ने आपको मौका दिया, लेकिन उसके बाद आपका कोई टीचर तो रहा होगा ना, जिसको आप बताया होगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है शबाना। मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे वॉइस ओवर की ABCD बताई कि A और फिर B और फिर C आएगा, ऐसे करना है, उसमें जो मैं नाम लूँगी मरहूम परवेज़ बशीर साहब का, PB जिनको हम कहते हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। और उसके साथ में सलमान अख्तर और सलमान टूटू जिनको हम कहते हैं, हमारी वॉइस ओवर की दुनिया में वो इसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो ये 3 नाम मेरे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, एक होता है कि जब हम रेडियो की लिसनरशिप में जाते हैं तो मतलब इतनी फ़ैन फॉलोइंग्स होती हैं हमारे आरजेस के जो होते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, लेकिन लोग उनकी आवाज़ के फ़ैन होते हैं। अब जैसे जितने भी तुमने प्लेस किए हैं और उनके लीड कैरेक्टर्स किए हैं, और ज़ाहिर से वो टर्किश प्लेस नो डाउट लोगों में बहुत पसंद किया गया, ब्लॉकबस्टर्स थे, तो आज हमने उन कैरेक्टर्स के पीछे जो आवाज़ है उनसे आप मुलाकात करवा दी हमारे व्यूअर्स की। तो वो मुझे प्लेस के नाम बताओ और कौन सा कैरेक्टर तुमने किया था कि अब उनको रिकॉल होगा, अच्छा तो ये थी वो। बिल्कुल मैं बताऊंगी, और मैं एक थोड़ा सा वाकया भी आपके साथ शेयर करूंगी। जिन दिनों मेरा इश्क ममनू ऑन एयर था, वो चल रहा था, तो मैं डिनर पे थी एक होटल में, तो वहाँ लॉबी में मैं अपना मूव किया, अब मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन आ रहा है ना, 2 लड़कियाँ आ रही थी, वो आई, उसके बाद मैं बुफे टेबल पे गई, मैंने अपनी वो प्लेट बनाई, तो वो फिर उनको मौका मिला मेरे पास आने का, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि मैं अपने ग्रुप्स के साथ में थी, 2-4 और भी लोग थे, तो हम लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात और शायद जो भी हमारी डिस्कशन हो रही थी वो उन्होंने सुन ली थी, और उसके बाद फिर वो मेरे पास आई, फिर उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ करके बात की, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप पैकर है ना, इश्क ममनू की पैकर। तो मैं एकदम चौंकी, मैंने कहा जी, मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? तो कहा आपका अंदाज और आप बात कर रही थी, और आपको देख, आपकी आवाज़ सुन के बिल्कुल हमें लगा आप ही पैकर है, वो आवाज़ है वही। तो मेरे लिए बड़ी एक एजाज की बात थी, मतलब वो मेरा स्टार्ट था ना शबाना। हाँ। आज से मैं 11 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो वो बड़ा मुझे एक ऑनर मुझे फील हुआ। कौन सा कैरेक्टर करने में मुश्किल आई? कौन सा कैरेक्टर? अभी मेरा रिसेंटली चल रहा है एक ड्रामा किराए की मोहब्बत, लव फॉर रेंट। उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो प्योर फनी कैरेक्टर है, मतलब वो जो लेडी है वो किस वक्त कॉमेडी में आ जाती है, किस वक्त शाउट होती है, मतलब है टिपिकल कॉमेडी कैरेक्टर, लेकिन उसके बहुत कलर हैं। वो कभी डांस कर रही है, कभी वो इतना स्लो हो गई है, लेकिन उसके डायलॉग, उसकी पिच इतनी हाई होती है, तो मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। लेकिन मेरे जो साथ डायरेक्टर होता है मुझसे कहता है जो मैं ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होती ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक टेक और ले लें, और उसमें मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आपने मुझसे बात की थी कि कौन कौन से वो ड्रामास रहे हैं अब तक, तो मेरा पहला जो मेरा डेब्यू था वो था इज़ाबेल मेरी आखिरी मोहब्बत, उसके बाद इश्क ममनू, फरी आया, फातिमा गुल आया, और फिर आया मेरा सुल्तान। मेरा सुल्तान बहुत, उससे मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अर्तुगरुल आया, और अभी रिसेंटली चल रहे हैं कुछ ड्रामास, उसमें लव फॉर रेंट है, और माय लेफ्ट साइड है, और इफ़्फ़त एक ड्रामा आया था, वो मेरा बहुत। तो ये सारा अब तक टर्किश कर रही हो, तो हमारे जो अपने जो प्लेस बन रहे हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो
तुम्हें अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो तुम काम कर रही हो, जब नहीं। तुम आवाज के जरिए एक्ट कर हाँ। सकती हो, तो तुम स्क्रीन पे फिजिकली भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स कर सकती नहीं हो। शबाना, मुझे बहुत ऑफर्स रही हैं। तो कर नहीं रही हो या और- इसमें इतना बिजी हो? मुझे अभी रिसेंटली भी मुझे किया था अप्रोच, लेकिन वही वाली बात कि मैं इसमें बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। लेकिन ये अच्छा, है आपस की कि बात है, यहाँ पैसा अच्छा मिल रहा है, हाँ, जाहिर सी Obviously, ऑब्वियसली आर्टिस्ट का बिल्कुल। किचन अपने टैलेंट से हो रहा है, बिल्कुल, तो शौक अपनी जगह, लेकिन आर्टिस्ट है और फिर ब्रेड एंड बटर आर्टिस्ट का यही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्शंस चल रही हैं। और मैंने फिर एक ये ड्रामास तो हैं एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सूरह मुल्क का तर्जुमा भी किया था। माशाल्लाह। उसमें मुझे एक अलग ही रूहानी सुकून मिला था और मुझे इतनी खुशी हुई थी वो करके कि मेरे पास लफ्ज नहीं है। तुम्हारे इतने वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन सबसे जो मेरा फेवरेट है वो तुम्हारा मलंगी है। मलंगी वो एक अलग ही लेवल पे जा रहा है, वो बहुत मुझे और ये भी रिकॉर्ड तोड़ना है कि सबसे ज्यादा जो वीडियोस हैं वो एनजीस के आएंगे। किसी म्यूजिक पैशन है मेरा, और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा डिफरेंट काम करूं, अच्छे लोगों के साथ में काम करूं, ताकि स्टैंडर्ड और क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। और कभी पाकिस्तान से बाहर गई हो और वहां पर जैसे मलेशिया में, वहां मैं अपने शोज के लिए गई, तो मैंने उन दिनों कमर्शियल किया था एक। अच्छा। तो वो मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि उसको इतनी वर्ल्ड वाइड उसको एक शोहरत मिलेगी, उसको फेम मिली होगी। तो यहाँ पे चल रहा था सिलसिला, उन्हीं दिनों मैं मूव कर गई थी, मुझे जाना पड़ा था। तो वहाँ पे एक ऑडियंस में से एक साहब उठ के आए, उन्होंने मुझसे कहा कि ये आप है? अच्छा, वहाँ की कम्युनिटी मिक्स है, वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी और फॉरेनर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ मौजूद हैं उस वक्त। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हैं, तो मैं बिज़ी थी, बात कर रही थी अपने म्यूजिशियंस के साथ। मैंने कहा जी जी, मैं समझी शायद कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गाना सुनना है, कोई बात। मैंने कहा जी। अब वो न्यूज़पेपर लेके, मैंने कहा नहीं, ये तो इतना बड़ा पेपर लेके खड़े। मैंने कहा जी। तो फिर उन्होंने दिखाया, उसमें मेरा वो लगा हुआ था और पोस्टर था मेरा। अब देखा तो वो मेरा, मैंने कहा अरे, और फिर मैं इतना खुश, मैंने इतना शुक्र अदा किया अल्लाह का। मैंने कहा वाह अल्लाह ताला, कि मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। और वो कहते हैं ना, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, ऐसा ही वो है, इज्जत और बिल्कुल, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल। परवरदिगार के हाथ में। बिल्कुल। बंदा अगर उसको खुश करे और अपने काम करता जाए, क्योंकि काम कोई बुरा नहीं है, ऐसा ही है। वही होता है कि हम कैरी किस तरह करते हैं, हम बिल्कुल करते किस बिल्कुल, मैं हमेशा से यही बात कहती हूँ कि सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी जगह खुद बनाते हैं, अपना सर्कल खुद बनाते हैं, और अच्छे और बुरे ये लोग हर जगह हैं। अच्छा, बहन भाइयों में सिर्फ एक तुम ही हो कि इस साइड पर आई हो, या नहीं, मैं तो खासा लेट आई हूँ। मेरे दूसरे भाई हैं, वो कामरान खुर्रम, अहमद कामरान खुर्रम, ये दोनों अपने अपनी प्रोडक्शंस में बिजी हैं और काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया शबाना। अच्छी बात। मैंने हमेशा अपने आप के ऊपर बिलीव किया है, और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं मैंने कभी कहा कि मुझे, जैसा भी आपने कहा कि एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई, तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे ओएसटी करना है कि किसी भाई के ही ड्रामे में, लेकिन नहीं, मेरी हर चीज़ खुद हुई। मैंने 6 सितंबर का शो मैंने किया था आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे जो मेरा इवेंट था वो प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के सामने था। तो मेरा मतलब ये भी एक एजाज़ है कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर के साथ मैंने लंच किया है, मैंने डिनर किया है, और हमारी पूरी टीम थी, और मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था इस स्टेज पे। तो ये सारे एजाज और सारी मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों का प्यार, उनकी दी हुई इज्जत ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मेरे और लिए। इरफान साहब जब दुनिया से मतलब कुछ अर्से पहले, जब रहलत फरमाने से पहले, क्या वो एक वो जो डेडलॉक था, जो एक सख्त पाबंदी लग गई थी कि अब नहीं जाना, और अब जब तुम्हारी उन्होंने सक्सेस देखी, कामयाबी देखी, तो क्या कहते थे? खुश होते थे? शबाना बहुत खुश होते थे। मेरी मदर स्पेशली मुझे सॉन्ग्स बताती थी कि बेटा तुम ये वाला सॉन्ग नहीं गाती हो, ये गाया करो, ये मेरा फेवरेट है। अभी तुम्हें फेवरेट गाना सुनाना है, हमें भी सुनाना है, जाने नहीं देंगे। और जो मेरे इंटरव्यूज़ या इवन जब वो कमर्शियल मेरा ऑन एयर हुआ था, तो मेरी मदर ने बहुत पसंद किया था, घर में सब ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि वेल डन, और अल्लाह कामयाब करे।
اچھا جب سب لوگ خوش ہو گئے, فیملی بھی خوش ہو گئی, آپ کے فین فالوئنگ بھی بڑھ گئی, تو اب میں سوال کرنا چاہوں گی کہ تمہارا کوئی فیوریٹ سین یا کوئی فیوریٹ ڈائلاگ جو تمہیں بہت مشکل بھی ہوئی ہو اس کو پرفارم کرنے میں یا کرنے میں, اور ماشاءاللہ وہ لوگوں میں کافی ہٹ بھی ہوا ہو یا تمہیں بہت اچھا لگا ہو سین کرنے. شبانہ دیکھیں, ایک ماں ہوتی ہے نا, اس کے بچے ہوتے ہیں, تو اس کے بچوں کے لیے کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو کون سا بیبی اپنا پسند ہے, وہ کہے کہ میرے لیے سب ایک جیسے ہیں. تو اسی طرح سے میں اپنے جتنے میرے پروجیکٹس ہیں, خواہ وہ میوزک کا ہو, خواہ وہ ڈبنگ کا ہو, جو بھی ہو, میں اس میں کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میرا مطلب سب فیوریٹ ہے, مطلب یہ سب سے اچھا. میرے لیے سب اچھے, کیونکہ ہر ایک پہ میں بہت ڈیووشنس کے ساتھ کام کرتی ہوں, اپنا 100% دیتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھے مزہ کس کو زیادہ آیا کر کے بہت انجوائے کیا. تو میرا ایک پلے تھا ڈبنگ کا, عفت ڈرامہ آیا تھا جیو سے, اس کو ہم نے کیا تھا, تو اس کا ایک اس کے پروموز بھی بہت زیادہ ہٹ ہوئے تھے, تو وہ میں آپ کو فل ڈائلاگ میں آپ کو بتاتی ہوں, شاید ہمارے ویورز کو ریکال ہو جائے. بالکل بالکل, عفت کا تھا اور عفت ہی میں اس میں, تو میں وہ بتاتی ہوں آپ کو. میرے بابا میرا سب کچھ, بابا نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی. میں اپنے بابا کا غرور ہوں. میرے دل کا بس ایک ہی ارماں ہے کہ میں اپنے گھر سے دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوں. So sweet, so sweet. یہ اتنا زبردست ہے, آپ اگر اس کا پرومو اٹھا کے دیکھیں اس کا, تو مطلب لٹرلی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور پیچھے سے یہ نریشن آ رہی ہے, تو مطلب میں اتنی فیل آئی تھی اس کے اندر کہ میں رو دی تھی, کیونکہ اس کی جو سٹوری ہے نا, وہ بڑی دکھی لڑکی ہوتی ہے, جو بیٹی ہوتی ہے فت, تو بہت دکھی ہوتی ہے, تو بہت ٹوئسٹ ہیں, ٹریجڈیز ہیں اس ڈرامے کے اندر. سو یہ میرا فیوریٹ ہے. اچھا چلو, ابھی تم نے کہا میرے لیے تو سارے بچے سارے کریکٹر, اب آئی تھنک اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارا اپنا سانگ کون سا سانگ ہے جو تمہارا موسٹ فیوریٹ ہے, تو آئی تھنک میں نے وہی جواب دینا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا چلو, اپنے سانگس کے علاوہ تمہارے اپنے کون سا ایسا سنگر ہے جس کو تم نے فالو کیا ہے, یا جو تمہارا آئیڈیل ہے, جس کو دیکھ کر تم اس کے سٹائل کو, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ انسپریشن لیتے ہیں. بالکل, میری جو انسپریشن ہے وہ نازیہ حسن کے ساتھ میں ہے, اور نازیہ حسن میری فیوریٹ سنگر ہیں, اور ان سے, ان کے سانگ سے, ان کے پرسنالٹی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور انہی کو کوشش کرتی ہوں کہ ان جیسا بن سکوں, ان جیسا گاؤں. اپنے جو میرا شوبز کا جو میرا جتنی بھی میری میوزیکلی میری جرنی ہے, تو فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. چلے ہمارے آج کے پروگرام کا اینڈ بھی ہم اپنی ان لیجنڈری سنگر نازیہ حسن, جو پاپ میوزک, جیسے آپ کے والد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پشتو فلم کے پہلے ڈسٹریبیوٹر تھے, اور نازیہ حسن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان پاپ میوزک کی مطلب وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا, اور وہ بہت فاؤنڈر جانی جاتی ہے ہماری, بالکل پاکستان کی. این جی پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم, لیکن جانے نہیں دینا, پہلے تو ایک میسج دے دو, پھر میں اپنے ویورز کو اللہ حافظ کہہ دوں, اور پھر تمہارے سانگ کی طرف جاؤں. میسج میرا ہمیشہ کی طرح جو میں اپنے ہر شو میں, ہر پروگرام میں اپنے ویورز کو دیتی ہوں, کہ کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا ہمارے ان نیو اپ کمنگ آرٹسٹ کے لیے. آرٹسٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب وہ شوق رکھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور آرٹسٹ بنیں گے, کہ وہ اگر اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو بالکل خوش دلی کے ساتھ میں آگے بڑھیے, اور کبھی اپنی فیملی ویلیوز کو نہ اگنور کیجیے. اپنے اصول بنائیں اپنی زندگی کے, کبھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ نہ پا سکیں, جس کو آپ نہ پا سکیں. مشکل ضرور ہوتی ہے, تو کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ٹی ٹائم. اور اوور ٹو یو این جی. اوکے چلیں جی, شبانہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ایک سانگ سناؤں, تھوڑا سا گنگناتی ہوں, تھوڑا میرا گلا بھی ویدر کی سچویشن کی وجہ سے تھوڑا سا سیٹ نہیں ہے, بٹ کوشش کرتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے. ٹالی تے تھلے بہ کے, ہاں بہ کے, او ماہیا وے ماہیا, کریے پیار دیاں گلاں, تو کریے پیار دیاں گلاں. ڈالی تے تھلے بہ کے, ہاں بہ کے, او ماہیا وے ماہیا, کریے پیار دیاں گلاں, تو کریے پیار دیاں گلاں. تو میرا درد وناوے,
हाँ वरनावे मैं तेरे दर्द वरनावा करिए प्यार दियां गल्लां तू करिए प्यार दियां गल्लां हो